برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کر دو. یہ کام خدا نے ان کے گناہ کرنے سے پہلے کیا تھا. یہ برکت خدا نے آدم اور حوا کے گناہ کرنے سے پہلے خدا نے دی تھی. اور خدا نے کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. لیکن تب اس اولاد میں گناہ نہیں تھا. اس جبلت کے اندر گناہ موجود نہیں تھا. لیکن جب گناہ شامل ہوا تو اس نے لکھا ہے کہ گناہ حاملہ ہو کر موت کو جنم دیتا ہے. گناہ کیا کرتا ہے جی؟ حاملہ ہو کر موت کو جنم دیتا ہے. اور موت کیا کرتی ہے؟ جدائی پیدا کرتی ہے. اور اس نے خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا کری اور یوں انسان خدا سے الگ ہو گیا، دور ہو گیا. خدا اس سے روپوش ہو گیا، کیونکہ خدا کی ذات میں گناہ نہیں ہے. خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا. اور کیا ہے جی؟ خدا اس لیے کہتا ہے کہ میں یہ پھل جسے دیتا ہوں وہ کیا کرتا ہوں. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے کیا ہے جی؟ میراث ہے. اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اور کیا ہے جی؟ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. جوانی کے فرزند کیسے ہیں؟ جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، جوش والے بھرے ہوئے. خدا پسند کرتا ہے جوانوں کو تاکہ وہ پھر انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. لیکن ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ انہیں کلام کی جگالی بھی اسی طرح سے کروائیں. انہیں خدا کا کلام بھی اسی طرح سے سکھائیں، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم انہیں خدا کے ساتھ جوڑیں. ہم انہیں خدا کے ساتھ جوڑیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں خدا کے متعلق بتائیں، خدا سے ان کی واقفیت کروائیں. خدا کے بارے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے. 2 دن پہلے میرا بیٹا محلیل مجھ سے اس نے ایک نیوز دیکھی جنگ کے بارے میں، اور پتہ چلا کہ سپلائی لائن جو ہے وہ کٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، فوڈ وغیرہ کی شارٹیج ہونے والی ہے. تو یہ پریشان ہو گیا. تو پہلے تو رونے لگا. اگلے دن دوبارہ اس نے جب نیوز دیکھی تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا، ہم صبح ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے، ناشتے میں نیوز دیکھ رہا تھا. کہتا بابا اگر ایسے ہوا تو کیا ہم سب مر جائیں گے؟ کیا ہمیں بھی فوڈ نہیں ملے گا؟ تو میں نے بجائے کہ سے یہ کہتا کہ نہیں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا ہاں ایسا ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں ایسا ہوگا. لیکن تیرے پاس کیا چوائس ہے؟ میں نے ابھی وہ ایکشن اسے کر کے نہیں دکھایا تھا. میں نے کہا اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ ہم تجھے فوڈ دیتے ہیں اور تیرے سامنے بہت سارا کھانا رکھ دے اور تو بھوکا ہوگا، اور ایک طرف تجھے کہے کہ کیا تو یسوع کے ساتھ جانا چاہے گا کہ یہ کھانا لے کر جانا چاہے گا، تو کیا چوز کرے گا؟ تو اس کا بڑا اچھا خوبصورت جواب تھا. کہتا ہے میں یسوع کو چوز کروں گا، کھانے کو چھوڑ دوں گا. پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی تجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے، مارنے کے لیے آئے، تجھے سٹیبنگ کرے اور کرنے لگے اور کہے کہ تو یسوع کا انکار کر تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیری جان کو بخش دوں گا، تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں اسے کہوں گا تو مجھے سٹیب کر لے پر میں یسوع کو نہیں چھوڑوں گا. خدا کے کلام کا بیج آپ کو اپنے بچوں کے اندر بونا ہے تاکہ جب برے دن آئیں تو کیا ہو؟ وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں. کوئی خوراک، کوئی بھی ایسی چیز انہیں جدا نہ کرنے پائے، نہ کال، نہ ننگا پن، کوئی بھی، نہ تلوار، نہ خطرہ، نہ کال، نہ ننگا پن، کوئی بھی چیز خدا سے جدا نہ کرنے پائے. اگر ہم اچھا بیج بوئیں گے، اچھی فصل کاٹیں گے تاکہ خدا کا نام جلال پائے. میرے ساتھ امثال کی کتاب 17ویں باب کی 6 آیت کو دیکھیں گے جی.
इमसाल 17वें बाब की 6 आयत। बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और बेटों के फख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। क्या है जी? बेटों के बेटे क्या हैं जी? बूढ़ों के लिए ताज हैं। यानी के दादियां आस्ते पोते की ने ताज ने। खुदा क्या कहता है? वो क्या है? उनके लिए ताज हैं। और आगे पढ़िएगा जी। और बेटों के फख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। और बेटों के फख्र का बाइस उनके क्या है? बाप दादा हैं। हमारे बाप दादा हमारे लिए फख्र का बाइस हैं कि उन्होंने हमसे पहले मसीह को कबूल किया और हम मसीही खानदान में पैदा हुए। हमने मसीह को जाना, परखा, उन्होंने हमारी पहचान करवाई। ये उन्हीं लोगों के लिए खुदा कह रहा है जो अपनी औलाद में कलाम का बीज बोते हैं। जो अपनी औलाद में कलाम का बीज बोते हैं, खुदा ये बात उनके लिए कर रहा है। और खुदा कह रहा है क्या है जी? वो क्या है? बेटों के फख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। बेटों के फख्र का बायस क्या है जी? उनके बाप दादा हैं। ये फख्र है कि खुदा ने औलाद मैरियल खुदा ने क्या किया है जी? औलाद दी है। खुदा ने बरकत दी है क्योंकि ये औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास के तौर पर है। तो जो चीज मिरास के तौर पर है, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए जी? जो चीज मिरास के तौर पर है उसके लिए क्या करना चाहिए? आइए जरा देखें ज़बूर 118 उसकी 24वीं आयत। एक 118 की 24वीं आयत। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इस दिन में शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। क्या करेंगे जी? ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इस दिन में शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। सेलिब्रेशन बड़ी जरूरी है। सेलिब्रेशन जो है किसी भी काम की जो हमारी जिंदगी में खुदा करता है, भलाई के काम करता है। खुदा ने हमें निजात दी, खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से, तो क्या है? हम उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। हम ईस्टर मनाते हैं कि हमारी निजात हुई। हम क्रिसमस मनाते हैं कि हमारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ। आज हमें उम्मीद मिल गई कि हमारी निजात के दरवाजे को अब खोल दिया जाएगा। और जिस दिन वो कुर्बान हुआ, वो कहता है कि तमाम हुआ, निजात का वो काम तमाम हुआ। वो बंद रास्ता उसने खोल दिया, वो गुनाह का प्याला उसने खुद पी लिया ताकि हम जिंदगी में दाखिल हो सके और अबदी जिंदगी में दाखिल हो सके। यहाँ इस काम की सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। बाज लोग क्या करते हैं कि वो घर में ही कहते हैं कि असी घर च आप एक अद्धे दिन आ रही असी आप ही घर च बच्चे की सालगिरह मना रही थी। हम पसंद नहीं करते, हम सेलिब्रेशन करना पसंद नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता। कलाम कहता कर ले सेलिब्रेशन, हर अच्छे काम की तू सेलिब्रेशन कर ले। और ये सेलिब्रेशन कैसे कह रहा है खुदा? अय्यूब की किताब पहले बाब की 4 आयत को देखेंगे जी। अय्यूब की किताब अहद अतीक में ही अब अय्यूब की फैमिली में क्या होता था? ये भी खुदा का बंदा था। थे ना बारी बारी। पहले बाब की 4 आयत ठीक पढ़े। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। उसके बेटे क्या करते थे? अय्यूब के बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। रिलेशनशिप थे उनके आपस में, अच्छे रवाबिक थे।
वो एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के घर जाया करते थे, और क्या था जी, और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। दैट्स मीन दे डेडिकेट द डे। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया हुआ था हर एक ने अपने लिए, और वो उस दिन क्या करता था, ज़ियाफत किया करता था, खाने का एहतमाम किया करता था, अपने भाइयों को इकट्ठा किया करते थे। और ये सिर्फ भाई इकट्ठे नहीं थे होते, पूरे का पूरा खानदान, उनके नौकर चाकर सारे जो थे वो इसमें शामिल हुआ करते थे। और क्या है जी, आगे क्या है, और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। खाने पीने के लिए अपनी बहनों को भी बुला भेजते। जब उनको बुलाते थे तो उनके नौकर चाकर भी सारे उनके साथ आया करते थे। यानी कि ये बहुत बड़ी ज़ियाफत होती थी, सेलिब्रेशन होती थी। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठे हो रहे और उन्होंने अपने दिन मुकर्रर किए जिसमें वो खुदा के नाम को जलाल दिया करते थे, जिसमें वो खुदा के नाम को जलाल दिया करते थे, सेलिब्रेशन करते थे। मेरे साथ रोमियो की किताब 4वें अहद जदीद में पौलुस रसूल का खत रोमन की कलीसिया के नाम 14वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत को देखेंगे। चौदहवें बाब की 5वीं और 6वीं आयत। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। कोई क्या करता है, एक दूसरे से एक दिन को दूसरे दिन से अफजल जानता है। यानी कि हमने सेलिब्रेशन के लिए जो दिन मुकर्रर किए वो अफजल दिन हम मानते हैं। हमने क्रिसमस जो है वो तय किया हुआ है, उसे अफजल दिन माना जाता है। ईस्टर को अफजल दिन माना जाता है, नए साल को अफजल दिन माना जाता है। ये छुट्टियां जो सरकार हमें देती है, सरकार उन छुट्टियों को अफजल दिन मानती है, तो इसलिए हमें क्या करती है, सरकार सेलिब्रेशन करने के लिए वो दिन देती है। वो दिन मनाने के लिए दिए जाते हैं कि उस दिन में क्या करें, हम खुशी करें, उस दिन में हम याद करें पुरानी चीज़ों को, उनकी याद में उन लोगों ने जो हमारे लिए काम किए, तो क्या करें, उसकी सेलिब्रेशन करें। क्रिसमस ईस्टर हम मनाते हैं, जो काम खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किया बनी नौ इंसान के लिए, हम उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए खुशी मनाते हैं। तो फिर औलाद की सेलिब्रेशन करने के लिए दिन जो मुकर्रर हम करते हैं, कि तारीख मुकर्रर करते हैं, तो फिर उसकी सेलिब्रेशन क्यों ना करें। वो भी तो खुशी खुदा ने दी है हमें, वो खुशी खुदा ने दी है, वो मिरास हमें खुदा ने दी है, वो फल हमें खुदा ने दिया है। तो क्या करना चाहिए, अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करके क्या करना चाहिए, उसकी खुशी मनानी चाहिए, उसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। ये बर्थडे, पैदाइश का दिन, अच्छा वर्ड है। हमारे जुबान में जो इसके लिए वर्ड है वो है सालगिरह। साल, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? एक साल को गिरा लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये गिरा है। ये वो वाला गिरा नहीं जो लोग समझते हैं कि गिर गया, बल्कि ये गिरा है, गांठ वाला गिरा। क्या है, पिछले साल को क्या लग गई है जी, गिरा लग गई है, और अब आगे चला जाएगा, अब पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे तो लग गई है गिरा, पीछे गिरा लग गई है, और अब ये पीछे नहीं जा सकता, नोक लग गई है, टाइट कर दिया गया है, अब ये पीछे नहीं जा सकता, बल्कि ये आगे जाएगा। और आगे बढ़ते हुए साल की क्या करनी है, खुशी मनानी है, ना कि गुजरे हुए साल के लिए गम करना। क्या करना है, आने वाले साल की खुशी मनानी। जब नया साल आता है तो न्यू ईयर में हम क्या करते हैं, पुराने साल की शुक्रगुजारी करते हैं, हम नए साल की खुशी मनाते हैं, कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने नया साल दिया। तो फिर अपनी औलाद के लिए भी हमें इस तरह की सेलिब्रेशन की करनी चाहिए, क्योंकि ये फल खुदावंद की तरफ से क्या है जी, मिरास है। देखिए मेरे साथ इंसाल की किताब 17वें बाब की 6वीं आयत, सॉरी ज़बूर 128 उसकी 3री आयत। ज़बूर 128 तेरी बीवी ते घर के
अंदर मेवादार ताक की मान होगी, क्या है जी? तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मान मेवादार ताक की मानिद होगी, होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मान। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। बनी इसराइल क्या करते थे कि जब वो थके हारे शाम को घर आते थे तो खाने के लिए जब बैठते थे तो वो अपने मेज के ऊपर जैतून के पौधे भी, पत्ते भी रखा करते थे। जैतून को जगह जगह पर पत्तों को वो रखा करते थे। वहाँ जैतून बहुत होता है मिडिल ईस्ट में, उन हिस्सों में जैतून की काश्त बड़ी होती है, तो लिहाजा वो जैतून को अपने गिर्द रखा करते थे, पत्तों को। अगर आपने कभी ये तजर्बा किया हो कि जैतून के पत्तों को लें और उसे सूंघे तो क्या होता है जी? सारे दिन की थकन जो है वो दूर हो जाती है, बदन में से दर्द वर्द जो है वो चली जाती है। सूंघते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है? जिस्म की थकावट उतर जाती है, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो कलाम क्या कहता है कि तेरी औलाद क्या है? तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद है। ये क्या करेगी? जब तू इसे देखेगा, जब तू इसे छुएगा, जब तू इसे गले लगाएगा तो क्या होगा? तेरी थकन उतर जाएगी। खुदावन ने समझ ले मसाजर दिया हुआ है आपको, खुदावन ने मसाजर दिया हुआ है आपको, क्योंकि वो कहता है कि ये क्या है? ये मेरी तरफ से मिरास है, ये पेट का फल मेरी तरफ से क्या है? तुझे अजर है। और खुदावन का अजर क्या करता है? जिस तरह खुदावन में शिफा पाई जाती है तो फिर खुदावन के अजर में भी शिफा पाई जाती है। खुदा ने हमारी खुशी के लिए हमें औलाद बख्शी है। जिनके औलाद नहीं होती वो बड़े गमनाक होते हैं। वो क्या होता है? गमनाक होते हैं, और लोगों की बेफजूल की जो बातें होती हैं वो उन्हें बर्दाश्त भी करते हैं। बाज लोग उन्हें अपनी दावतों में नहीं बुलाते, वो कहते हैं ये मनहूस है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ औलाद नहीं है। इसी बात को हन्ना भी सुनती होगी, शायद उस दौर में भी हन्ना के साथ भी ऐसा होता हुआ, इसलिए हन्ना ने जाकर खुदावन से फरियाद की, इल्तिजा की, खुदावन के आगे वो गिड़गिड़ाई, और खुदा ने क्या किया? हन्ना की गोद को भर दिया। खुदा ने उसके रहम को खोल दिया। याकूब अपनी बीवी राखल के लिए दुआ किया करता था, क्योंकि राखल को भी ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। खुदा ने राखल पर रहम किया और राखल को औलाद बख्शी, क्योंकि औलाद क्या करती है? आपको बदनामी से बचा देती है। औलाद आपको बदनामी से बचा देती है। औलाद आपको इज्जत बख्शती है। औलाद आपको सरफराज करती है। जिन औरतों की खानदान में इज्जत नहीं होती, बेटा बेटी पैदा होया ससा जड़ियां ने वो आसमान ते चाड़ देंदियां ने फिर, वही सास जो पहले उसके साथ उसे बुरा भला कहती है, अगर औलाद पैदा हो जाए तो फिर क्या होता है? वो उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, क्योंकि खुदा फिर उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। सारा की औलाद नहीं थी। इब्राहिम एतकाद कर कर खुदा के पीछे चल पड़ा। खुदा ने इब्राहिम को औलाद सारा से पहले दी। इब्राहिम के और भी बच्चे थे दूसरी औरतों में से, लेकिन वादे का फर्जंद खुदा ने जो वादा किया था वो सारा में से था। और खुदा ने जब सारा को बरकत दी तो क्या हुआ? सारा की इज्जत बढ़ गई, क्योंकि उससे पहले सारा की अपनी लौंडियां जो थी वो सारा को बातें किया करती थी। लेकिन खुदा ने ये देखा और खुदा को अच्छा नहीं लगा, और खुदा ने सारा पर रहम किया। एक बात को याद रखें और दूसरों को भी ये बात समझाएं कि अगर किसी के औलाद नहीं है तो ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की चाहत है। खुदा वक्त मुकर्रर करके बैठा हुआ है। अगर हम किसी को इस वजह से बुरा भला कहें
तो हम खुदा को गुस्सा दिलाते हैं। हम क्या करते हैं जी? खुदा को गुस्सा दिलाते हैं और अपने खिलाफ खुदा को खड़ा कर रहे हैं। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो हवाला जात नहीं निकाल रहा। तो हम खुदा को क्या करते हैं जी? गुस्सा दिलाकर खुदा को अपने खिलाफ खड़ा कर लेते हैं। इसलिए जो कोई ऐसा करे उसे मना करें और खुद भी इस बात से हमेशा दूर रहें कि हमारी जिंदगी में ऐसी बातें ना हो, बल्कि क्या हो, उस खानदान के साथ मिले, दुआ करें ताकि खुदा उनको औलाद बख्शे और वो उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर सके जिसके लिए खुदा ने ये बरकत रखी है। खुदा ने हमें बरकत दी है। ये औलाद क्या क्या है जी? खुदावंद की तरफ से क्या है? मिरास है, और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। ये हमारे दस्तरखान पर क्या है? हमारी मेज पर क्या है? जैतून के पौधों की मानिंद हमें खुशबू देते हैं, हमें ताजगी देते हैं, हमें फ्रेश करते हैं। हमें इनकी बातें अच्छी लगती हैं, हमें इनकी जो है भागना दौड़ना जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि खुदा ने हमारे दस्तरखान पर ये जैतून के पौधे रखे हैं। और दुआ करें कि हमेशा खुदा रखे और आपकी औलाद की औलाद को क्या है? बेटे क्या? बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए क्या हैं? ताज हैं। कहते रकम नाल सूद ज्यादा प्यारा होता है जी। और ये आजमाई हुई बात है। मैंने देखा है अपने अब्बा जी से, जब कभी मैं बात करता हूँ तो मैंने इस बात को आजमाया है कि जैसा उनका रवैया हमारे साथ था, जिस तरह से, वैसा हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं है। बच्चों के साथ वो दोस्त हैं, और हमारे साथ अभी भी वो जब बात करते हैं तो गुस्से में कभी आ जाते हैं और कभी कहते हैं कि अच्छा फिर जब आएगा ना फिर तेना निबड़ांगा, गल करांगा। वो अभी वहां से भी हम पर अपना गुस्सा दिखा देते हैं। तो ये क्या है? उनके लिए ताज हैं। वो इसकी प्राइड लेते हैं, वो इसकी प्राइड लेते हैं, वो खुश होते हैं इस बात से। वो समझते हैं कि खुदा ने उनको तोहफा दिया है, और वो ना सिर्फ इस बात को कि खुश होते हैं, मानते हैं, बल्कि पूरे तौर पर कबूल सारे करते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे क्या हैं? हमारे लिए ताज हैं। हमारे अगर लिखा है बेटों के बेटे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटियों का जिक्र नहीं है। ये भी जरा, जहां कलाम आदम कहता है तो इसका मतलब है वो हवा की भी बात कर रहा है, क्योंकि आदम में से ही हवा निकली है, औरत मर्द में से निकली है। तो इसलिए जब खुदा मर्द कहता है, जब आदम बेटा कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बेटियों की बात नहीं करता। खुदा की नजर में दोनों बराबर हैं। तो यकसा रखें और खुदा के नाम को जलाल दे। खुदावंद आपको इस खुशबू से भरता रहे, ताकि आप हमेशा खुदा के नाम को जलाल देते रहे और हमेशा खुदा उनकी सेलिब्रेशन करते रहे। हम जैक के लिए भी दुआ करेंगे, इस घराने के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में एक साल को बढ़ाया है, ताकि वो ज़िंदगी की तमाम खूबसूरत बातों को सीखे, वो तमाम लम्हात को एंजॉय करे जो खुदा ने उसे बरकत बख्शी है।